करेंगे एंड मैं इनके लिए ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में. सो वी विल हैव बोथ हिंदी और इंग्लिश. Let me spotlight you, William. Okay. Okay. All right. So can everybody see the screen okay? All right, there's no shadows on the screen. Yes. Is that clear? Yes. Yep, all clear. All right, excellent. All good. All right, welcome everybody. So I'm going to go, this is a shorter version from this training. This training is usually a bit longer and it's in depth. So I've shortened it just to keep it as brief as I can without taking away the value. So me and Seema are going to do a little bit of a tag team because obviously I speak Scottish. Some of you might not understand my accent. Seema will speak English and Hindi at the same time, and we'll hopefully unpack this. So this is one of the glues and foundations for a healthy, amazing team that lasts a long time. So it's going to come down to the values of the team, right? So if we all align with the values, so if first value is integrity, right? Now, a lot of people have heard what does integrity mean, but we're going to unpack it a little bit. So over to you, Sina. Oh, you're on mute. Okay, आज हम डिफरेंट वैल्यूज जो STI की हैं उनके बारे में बात करेंगे. एंड सबसे पहली वैल्यू है इंटेग्रिटी. तो अभी इसके बारे में बात करते हैं. Okay, so value one, integrity, right? So integrity is doing what you know to do, the way it is designed to be done, keeping your word and honoring your promise. तो इंटेग्रिटी होती है कि आप वो करो जो आपको पता है कि वो ठीक चीज है करने के लिए. आपने जो कहा है, जो कहते हैं ना जुबान दी है मैंने, जो आपने बोल दिया वो आपकी जुबान हो जाती है. तो वो जब आपने कुछ बोल दिया तो आपको वो ही करना है और अपना जो आपने जुबान जो दी है उसको ऑनर करना होता है. उसका मतलब होता है इंटेग्रिटी. With integrity, you have nothing to fear because you have nothing to hide. With integrity, you'll do the right thing, so you will have no guilt. जब आप इंटेग्रिटी से काम करते हो तो आपको किसी चीज का डरने की बात नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जो सही चीज है आप वही कर रहे हो. तो आपको कोई भी उसमें गिल्ट नहीं, ये कोई कुछ भी बुरा नहीं लगता है, कि डर नहीं लगता है किसी भी बात का ना. So sometimes we can feel like a naughty child if your integrity is out because you know you're doing something you know you shouldn't, and makes people a little bit weird. So when we have a good integrity, we can walk a straight path and stay peaceful and calm. जब हम इंटेग्रिटी से कोई चीज नहीं करते हैं तो हमें ये लग सकता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ठीक, जो हमें पता है कि जो ठीक चीज है, जैसे हमने कहा है कि हम इस तरीके से काम करते हैं, अगर हम वैसे नहीं कर रहे, चाहे लोगों को नहीं पता, फिर भी एटलीस्ट हमें तो पता है ना, तो हमें अपने अंदर से उस चीज का डर लगता है. So here's some qualities of people with integrity, right? So honesty is a big thing, strong ethical principles, honor, trustworthiness, openness, transparency, and hide nothing. तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं इंटेग्रिटी में, जो कि है ऑनेस्टी, सच बोलना, स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल्स होने, ऑनर, ट्रस्टवर्दीनेस, ओपन, और जो कुछ भी छुपाना नहीं, मतलब कि William, I think in kind of. So these qualities for the foundation you build your. Sorry. I think you dropped out for a moment.
Oh, okay. So these qualities form the foundation of a person's character. So as you're going to build your business, right? We all operate from the same values. It's like a compass. So we know where we're all going. We all play the same game, and we build it on the foundation, on the rock. If you don't have integrity, you build your business on the sand. अगर आप ऐसे इंटेग्रिटी के साथ जब आप करते हो काम, तो आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, उससे आपकी कैरेक्टर की फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है. So the next value in your team is loyalty. This is so important. This is the glue that keeps everybody together. अगली हमारी वैल्यू है लॉयल्टी. ये वो वैल्यू है जो कि सारी टीम को इकट्ठे रखती है. So STI Unleashed is not a corporation built on self-interest, politics, or personal agendas. It's a tribe built on the bonds of love, support, empowerment of each other, each member of the tribe. जो एसटीआई टीम है, ये किसी के अपने पर्सनल मतलब के लिए टीम नहीं बनाई गई है, या किसी का अपना कोई पर्सनल एजेंडा हो. ये एक टीम है, ये एक ट्राइब है जो कि एक दूसरे की सपोर्ट एम्पावरमेंट के लिए हर जितने भी मेंबर हैं सबको ऊपर उठाने के लिए बनाई गई है ये टीम. So we stick together and have each other's backs through good times and bad. We win and celebrate together. We fail together. We laugh and we cry together. तो हमने एक दूसरे के साथ ही रह के, एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम भी देखेंगे, हम बुरे टाइम भी देखेंगे. हम बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, राइट? तो हमें इकट्ठे जीतना भी है, सेलिब्रेट भी करना है, फेल भी करना है टुगेदर. सब सब इकट्ठे ही हम करेंगे, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं. So when me and Nathan and Seema and Deep were all living in Jakarta for 6 years together, we went through every one of these things. We went through drama. We disagreed with each other. We were in tears. We were laughing. We traveled. We everything. But we love each other because we all come back to one thing: love and loyalty and respect. Oh, three things. तो हम भी इकट्ठे, विलियम, मैं, दीप, नेथन, हम सब इंडोनेशिया भी इतने साल इकट्ठे हमने काटे. एंड हम पिछले 10 साल से इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं, एंड हमने हर तरह का अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इकट्ठे. तो ये जो वैल्यू है, यही एक चीज है जो हमें इतने सालों से इकट्ठे जिसने रखा है. So loyalty means you have honor and respect for each other no matter what. You don't have to agree with everything that your team members or family do, but you must value their viewpoint as it could be your blind spot and allow their contribution. It's not about who's right, but what's right and searching for the truth together. The goal is a long-lasting personal relationships built on trust and runs deeper than just products and services. जब हम लॉयल्टी की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि अल्टीमेटली जो है हमारा जो बिजनेस है, ठीक है ना, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारे कैसे रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ, उस पे बना हुआ है. सबसे पहले हमारी टीम आनी चाहिए कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वो नंबर 1 होने चाहिए, राइट? तो हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, एक दूसरे के साथ काम करना है. ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें. हम हर बात पर एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि हम हर चीज पे बिल्कुल एक एक दूसरे के जैसे ही सोचें. ये भी हो सकता है कि हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हों, पर हमें फिर भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, एंड एक दूसरे को
एक दूसरे का योगदान भी अलाउ करना है अपनी टीम में। यही नहीं होता कि बस मेरी ही सुनो, हमें एक दूसरे की सुननी है, हमें इकट्ठे एक फैमिली की तरह अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। So the big things that we need to look at is right. So no gossip. A gossip can damage your business, and then it creates distrust. So no gossip. Don't say ill of trust and dishonors you and the other person. If someone is gossiping, don't entertain it. This keeps everyone respectful and doesn't damage relationships with people. If you find yourself in a situation where there is gossip, talk to your sponsor who has already been trained to deal with it, and then we can help you with the situation. तो लॉयल्टी की जो सबसे बड़ी बात आती है वो है गॉसिप। अब यहाँ पे गॉसिप तो सबको ही करनी अच्छी लगती है, ठीक है ना। एक दूसरे की इधर इधर हंस के मुंह पे बोलना है, पीछे जाके कुछ और बोलना है, राइट। तो ये चीज हमें अपनी टीम से बिल्कुल ही निकाल के बाहर फेंक देनी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज पे, जब हम एक दूसरे की बुराई करते हैं ना एक दूसरे की पीठ पीछे, उससे चाहे उस इंसान को नहीं पता उसके बारे में, फिर भी आप अगर किसी और के साथ बैठ के उनकी बुराई कर रहे हो तो उनका इम्प्रेशन उस पे, वो दूसरे इंसान पे बुरा पड़ता है। अल्टीमेटली वो चीज उनकी उनकी लाइफ पे, उनके रिलेशनशिप पे दूसरे लोगों के साथ उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपकी फैमिली में कोई है, अगर हम लॉयल्टी की बात करते हैं, क्या आप ये चाहोगे कि आपके फैमिली मेंबर के बारे में सारे लोग बुरा बुरा सोचें? नहीं चाहोगे ना। तो हमने टीम में भी एक फैमिली की तरह रहना है। तो जब हम टीम की बात करते हैं, हमने एक दूसरे की, अगर हम गॉसिप करते हैं, इसकी बात उधर उसकी बात इधर, तो फिर क्या है, सारे उन एक दूसरे के बारे में गलत तरीके से सोचते हैं। तो एक ट्रस्ट नहीं बन सकता टीम में। वो ट्रस्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि सबको, चाहे आपको नहीं पता कि किसी ने कुछ कहा है, फिर भी एक फीलिंग आपको आ जाती है, ठीक है ना। तो इससे सबकी एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट होती है टीम में वो कम होती है, और सारी टीम ही नीचे आ जाती है सिर्फ इस गॉसिप के चक्कर में। तो अगर कोई गॉसिप कर रहा है टीम में, आपने एज अ लीडर उन्हें समझाना है, उन्हें हटाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने अपनी अपलाइन के साथ बात करनी है। अगर आपके अपलाइन जो है वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते तो आपने उनके अपलाइन से जाके बात करनी है। लेकिन उस चीज का जो है, उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसको और बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम गॉसिप करते हैं वो चीज और बढ़ती ही जाती है। So the next value is humility. So humility is the ultimate characteristic of a leader of leadership, and means being guided by love, service, and dedication to a cause that is greater than you as an individual. It doesn't mean thinking less of yourself. It means thinking of yourself less. Our ego is the enemy, not each other. तो अगली जो हमारी वैल्यू है वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जिससे कि आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आप अपनी टीम के बारे में सोच के लेते हो। आप अपने आप को, सर्विस कहते हैं ना कि हम किसी का भला करने जा रहे हैं, उस इमोशन से आप अपने आप को गाइड होने देते हो, रादर देन कि आप बस यही सोचो। एज अ लीडर अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा कैसे पहले पहले भला हो जाए, तो आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी टीम के बारे में सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाऊं, तो इस बिजनेस में आप बहुत आगे जा सकते हो। एंड ये तभी होता है, इसके लिए जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो, एक ह्यूमिलिटी होती है कि आपने अपनी ईगो को इतने बड़े नहीं होने देना है कि मुझे ही सब कुछ पता है। जितना आप अपने आप को नीचे रख के लोगों के साथ
लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे, उतने ही आप अपने आप ही ऊपर उठ जाओगे। So humility means always bringing an empty cup attitude with you in life. We can learn from anyone in any situation if we are open that they can know something that we don't. तो जो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि आप एक ओपननेस होती है, एक ओपन माइंड के साथ आप आते हो, जो कहते हैं ना एम्प्टी खाली गिलास, उस एटीट्यूड के साथ आप आते हो। ये सोचना कि मुझे, चाहे मैं किसी भी पॉइंट पे हूँ लाइफ में, चाहे मैं किसी भी मेरा जो भी रैंक है, जितनी भी मेरी इनकम है, लेकिन अल्टीमेटली हमेशा ये माइंड में रखना कि आप किसी भी इंसान से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो आप हमेशा अपने आप को उस ओपन माइंडसेट के साथ जब रहते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपका है, ऑटोमेटिकली आप अपनी आसपास जितने भी लोग हैं उनसे छोटी छोटी चीजें सीख सकते हो। एंड आपका जो ईगो है वो बहुत ऊपर नहीं जाने देना। So know yourself is the beginning. Know the less you grow. Wisdom is the attitude of wonder and openness that comes from knowing that you don't know. जितना ज्यादा आप सोचते हो कि आपको पता है, उतना ही कम आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। जितना ज्यादा आप अपने आप को ओपन रखते हो, एक एटीट्यूड, ठीक है ना, कि मुझे एक्चुअली दुनिया में इतना ज्यादा, लाइक इतना कुछ सीखने को है कि मुझे तो उसका 1% भी नहीं पता होगा। जितना आप अपने माइंड को ओपन रखते हो उस तरीके से, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करते हो। उसी को कहते हैं विजडम। So our last value is excellence. So excellence, right? Doing the best you can, the quality of which being outstanding or extremely good. Not a moral concept, good or bad, doing the best you're capable of in a given situation based on your current level of awareness and skill. तो हमारी जो अगली वैल्यू है वो है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल परफेक्ट होना है हर चीज में, नहीं। एक्सेलेंस का मतलब है कि आपका जो बेस्ट क्वालिटी है वो आप आगे दो। आप अपना बेस्ट दो, अपनी टीम को, अपने कस्टमर्स को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास सबको, राइट। तो इसका अगेन ये मतलब नहीं है कि आप परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आप अपनी तरफ से जो आप बेस्ट कर सकते हो वो आप करो, ठीक है। इसका कोई ये नहीं है कि अगर आप एक्सेलेंस से काम कर रहे हो तो आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, उसका वो ये कोई मॉरल कंपस नहीं है। ये सिर्फ ये है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो और ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। So perfection is impossible. So perfection is an impossible standard people set for themselves and others that is unattainable. Humans are not perfect and life will never be that way. तो जैसे मैंने अभी कहा कि परफेक्शन के पीछे नहीं हमने भागना है, हमने एक्सेलेंस के पीछे भागना है, कि हमने अपनी तरफ से जो हमारा बेस्ट एफर्ट है वो देना है। हमें ये नहीं सोचना कि परफेक्ट क्या है। परफेक्ट तो वो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड होता है, इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट काम करें, वो एक्चुअली कभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि परफेक्ट इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें वेट नहीं करनी है। हमने अपना बेस्ट, अभी आज जो मेरा बेस्ट है मैंने वो डिलीवर करना है। परफेक्ट की पीछे नहीं पड़ना है हमने। So that we focus on perfection and excellence, right? So that's why we want to get away from the perfection
focus on the excellence, right? So excellence is consistently striving to do things the best of one's ability and always looking for the next level. तो एक्सीलेंस वो है कि आपको अपना बेस्ट देखना है और हमेशा ये देखना है कि मेरा नेक्स्ट लेवल क्या है, क्या मैं इससे बेटर काम कर सकती हूँ, एंड हमें उसके लिए स्ट्राइव करना है. So live your best life. Welcome to the SDI Unleashed family. And these values are the foundation. We're going to go through a longer training at some point because there's lots of great things in this training that help you, not just in your USANA business, but as in your marriage, with your children, in your job, just in every area of life. These 4 values, if you implement them into your life, it becomes like a compass. तो वेलकम टू द एसटीआई फैमिली. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसटीआई फैमिली में. ये जो वैल्यूज हैं ये अभी एक बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको बताया है. जब आप रियली इनको समझते हो एक डीपर लेवल पे, तो आपकी, अगर आप इन वैल्यूज के साथ अपनी लाइफ में जीते हो, तो आपकी लाइफ आगे, आपकी फैमिली में रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ में, आपका काम, आपके हर लाइफ के एरिया में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा.